अपने अपना माइक अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सके। आई वेलकम प्रोफेसर संदीप कुमार also. He is our assistant coordinator from Department of Psychology, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर संदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू वेरी मच। छात्रा मैम आ चुकी हैं, तो साइकोलॉजी के ही हैं प्रोफेसर संदीप कुमार जी, और बाकी हमारे एकेडमिक काउंसलर्स भी आ चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रोफेसर स्वाति पात्रा मैम को रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम प्लीज आप एड्रेस करें और कुछ स्टूडेंट्स को खासकर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और इन सब चीजों के बारे में जरूर गाइड करें। मैम, प्रोफेसर स्वाति पात्रा मैम। Thank you, Dr. Tripathi, and Professor Sandeep Kumar, and all the academic counselors, and all the staff of the regional center, and all of the newly fresh enrolled learners of IGNOU, of MAPC program as well as the PGDMH program. So this is a really nice initiative on the part of the regional center to have the induction program, which is of course a regular feature that we have every time the admission happens. And this time it is happening through online. So this is, I think, all the students must have taken this facility, this opportunity, so that they are able to attend, because sometimes offline में ये होता है कि like sometimes आप किसी कारण बस तो आप attend नहीं कर पा रहे हो, but online में I hope like all of the students who have taken admission, they are present here mostly, and otherwise I think the recording, the RC can share the recording with the learners. So coming to the programs, Dr. Tripathi, I think MAPC and PGDMS दोनों ही है ना यहाँ पे learners? जी हाँ मैम, दोनों हैं, और हमारे पास 44 की अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अराउंड 60-67 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट आ चुके हैं। तो वी हैव गुड नंबर मैम अभी। ओके, एंड PGDMH एंड MAPC दोनों लाइक एकेडमिक काउंसलर्स भी आप बता रहे थे? हाँ मैम, हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, एकेडमिक काउंसलर्स भी हैं, सभी लोग हैं। ओके, फाइन। सो I'll just briefly give you the outline of these two different programs. This is first, if I start with MAPC program, that is our Master of Arts in Psychology program. As you know, this is a 2 years program. Okay. 2 years degree program, but इसका जो maximum duration 4 years तक है. So आप अपने because IGNOU provides that flexibility, जिसके चलते आप अपने convenience के हिसाब से, अगर if it sometimes it is required, so you can you have that duration of 4 years to complete the degree. But preferably ये होगा and advisable भी ये होगा कि like आप जो minimum duration है 2 साल MA degree का, उसके अंदर ही आप complete करो, क्योंकि once you start with the studies and आप उसको एक plan form में उसको planning करते हो, schedule बनाते हो, and then it becomes easier to complete the degree. So जैसे कि आप regular mode में भी करते हैं, एक शेड्यूल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल अगर आप प्रोसीड करेंगे, शुरू से ही आपका 2 साल का ड्यूरेशन से आपका ये स्टडीज आपको करने हैं, असाइनमेंट सबमिशन है, कॉन्टैक्ट क्लासेस है एट द स्टडी सेंटर, फिर आपका थ्योरी एग्जाम है, इसमें प्रैक्टिकल इंटर्नशिप, बाकी जो एक्टिविटीज है जितने भी है, आप अगर उसको पहले से एक प्लान फॉर्म में आप शेड्यूल करके आप रखेंगे तो इट बिकम्स ईजियर टू कंप्लीट द डिग्री। नाउ इसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज hello, yeah, yes ma'am, you are audible ma'am. Yes ma'am, fine, yeah. So first important thing जो इसमें है कि MAPC का जो program guide है, that program guide gives you all the details regarding the particular program. So the first requirement will be, as a program coordinator, as a faculty of the psychology discipline of psychology, I would like all of you to go through the program guide first, okay, because काफी सारे queries जो आपके होंगे वो program guide से ही आपका solve हो जाएंगे, okay. And then we have a dedicated email ID for the program, that is psychology@ignou.ac.in. so वहाँ पे भी आप email करके query कर सकते हैं, but before that आप
जो प्रोग्राम गाइड है MAPC का, उसको आप गो थ्रू करिए. यू रीड द प्रोग्राम गाइड thoroughly from the beginning till the end. So that gives you a lot of information about different aspects of the program and also different other facilities that the university is providing. Now, coming to this particular program, as I said, it has minimum 2 years duration and maximum 4 years duration, जिसके अंदर आप complete कर सकते हैं इस program को. And eligibility, जैसे आपको पता होगा, इसका graduation degree in any subject है. Okay. So इसमें some of you may be from psychology background, जिन्होंने admission लिया है, and some of you may be from non-psychology background also. So one needs to, जो non-psychology background से आए हैं, you need to go through the study materials properly, because this may be a new subject for you. But since you have the interest and you have taken the decision to enroll for this program, so you can definitely do better in this program. You can definitely perform better, provided you follow the planning, you make a planning and study properly. Okay? And this also applies those who are from psychology background also. Okay? So planning is the key, and distance education mode में हम ये emphasize करते हैं कि reading is the important thing here. Okay? Because हमारा सारी चीजें आपके program guide में होता है, जो different handbooks होता है उसमें भी सारी चीजें दी गई हैं, तो reading is a must here. Okay? So as a distance learner, this usually we emphasize that one has to develop this reading habit, and one has to develop this reading habit जिसमें कि आप handbook पढ़ेंगे, program guide पढ़ेंगे, even IGNOU के website में भी information होता है, आपके regional center की भी website में information होता है. So you have to go through those, and things are already there, and that will provide you many information regarding different things. Now इसमें जो MAPC program जो है अभी at present it is available only in English medium. This is not available in Hindi medium. The meaning is that इसमें आपके जो course material होंगे, study materials होंगे, examination में जो आपके question paper आएंगे, this will be in English only. Examination में final theory examination में आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं अपना आंसर, बट इसका जो मीडियम है ये इंग्लिश मीडियम में ये प्रोग्राम अवेलेबल है. Okay. Now we have 2 years in this program. First year में आपके 6 theory courses होते हैं and एक practical course होता है, और second year में आपको एक specialization paper choose करना होता है. We have at present 3 specializations. One is clinical psychology, second is counseling psychology, और जो तीसरा है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. नो ये जो 3 कोर्सेस है सेकेंड ईयर में, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको री रजिस्टर करना होता है, एंड री रजिस्ट्रेशन के दौरान सेकेंड ईयर के लिए जब आप री रजिस्टर करते हैं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स, स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको चूज करना होता है. सो आइदर यू कैन चूज क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज OB पेपर आप चूज कर सकते हैं. नाउ समटाइम्स ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन लें. हियर आई वुड लाइक टू टेल दिस दैट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया. आज यू बी गोइंग थ्रू द फर्स्ट ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर के कोर्सेस आप करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा अबाउट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आल्सो, एंड आल्सो इट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर इंटरेस्ट एरिया, एंड आगे आप किस एरिया में जाना चाहते हैं. एंड समटाइम्स यू विल बी एज इन वर्किंग इन सम सेक्टर, सो दैट आल्सो विल डिसाइड कि कौन सी एरिया आपको सुइटेबल रहे आगे के लिए. सपोज आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ले रहे हैं तो क्लिनिकल सेटअप में अगर आपको काम करना है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी ले सकते हैं. सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में या कुछ इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, HR से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर द इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. या फिर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट गाइडेंस क्लिनिक्स जो है काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको उस एरिया में इंटरेस्ट है तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी ले सकते हैं. बट एज यू गो थ्रू योर फर्स्ट ईयर कोर्सेज तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया
अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो आपके सेकेंड ईयर के कौन से पेपर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है. नाउ सो ये जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करेंगे सेकेंड ईयर में, हर एक स्पेशलाइजेशन का 3 थ्योरी कोर्सेज होते हैं. Okay. And then related to that particular specialization, you will have one practical course, one internship course, and one project course. Okay. Now, psychology program ka, this is the main component. These are the main components, okay, because it gives you practical exposure. Okay. Because psychology, जो IGNOU में हम offer करते हैं, it is not just theoretical that आपने theory पढ़ा and then you gave the exam and that is it. Because psychology as a subject, as a discipline, it has to be practical oriented because it has application in the society, in the real field. So you have to, for that we have these 3 components, important components in the second year, that is practical, internship and project, जो कि आपके specialization से ही related होगा. एंड फर्स्ट ईयर में जो मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपके 6 थ्योरी पेपर्स होंगे एंड 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा. Okay, so you will have 6 theory courses. In IGNOU terms, we call it as courses. So 6 theory courses and 1 practical course होगा. Okay. Now यहाँ पे जो practical है, I will just briefly give you information about these 3 components: practical, internship and project. Practical आपका लैब सेटअप में होता है. साइकोलॉजी में लैब इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, तो इसीलिए आपके स्टडी सेंटर में जो साइकोलॉजी लैब होता है वहां पे आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं. एंड उसमें जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं स्टडी सेंटर में, दे विल टेक योर क्लासेस. वहां पे वो आप प्रैक्टिकल क्लास आएंगे एंड देन सो दे विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन उसके बाद साइकोलॉजिकल जो टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स यूजुअली एक दूसरे के ऊपर वहां पे वो खुद कंडक्ट करते हैं एंड देन प्रैक्टिकल रिपोर्ट लिखते हैं. एंड दैट प्रैक्टिकल रिपोर्ट इज इवैल्यूएटेड बाय द एकेडमिक काउंसलर्स एट द स्टडी सेंटर. सो वो आपने वहां पे जो प्रैक्टिकल क्लासेस किया, टेस्ट कंडक्शन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका फिर आपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनाया. वो प्रैक्टिकल रिपोर्ट का इवैल्यूएशन आपका स्टडी सेंटर में वहां पे एकेडमिक काउंसलर करते हैं. नाउ इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस में अटेंडेंस कंपलसरी है कि साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिकल क्लास वहां पे लैब में होगा, दैट इज अटेंडेंस इज कंपलसरी. एंड इसमें जो सेकंड वाला कंपोनेंट है आपका इंटर्नशिप है. इंटर्नशिप में ये होता है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप जो प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज दी गई हैं इंटर्नशिप हैंडबुक में, वो आपको वहां पे करना होता है. So, as I have said, related to each specialization, you will be doing this practical internship and project. So, internship also, when you are selecting a particular organization, suppose you have taken counseling psychology, then we have handbooks for internship. We have handbooks for practical and we have handbooks for project also. So handbook में सारा details दिया गया है कि कौन से organization आपने अगर counseling psychology लिया है तो कौन से organization आप choose कर सकते हो. And वहाँ पे organization में आपको एक supervisor भी लेना है. So we have given criteria, eligibility criteria for supervisor also. So whenever you are, suppose you have taken counseling psychology as specialization, you will be going through the handbook, internship handbook. You will be seeing there for counseling psychology which organization you can select, okay, and who can be the supervisor for you there, okay. And accordingly उस criteria के हिसाब से आप जब organization select करते हैं, then you inform that to your study center, to your academic counselor. Okay. Because internship में आपके academic counselor भी involve होते हैं, आपके जो supervisor at the agency, यहाँ पे जो organization आप choose करेंगे उसको हम agency बोलते हैं, and जो वहाँ पे आपको supervise करेंगे उनको हम agency supervisor बोलते हैं. Okay. So that is why आप internship में आप एजेंसी सिलेक्ट करेंगे, एकेडमिक काउंसलर को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द एजेंसी, एजेंसीज में आप एक सुपरवाइजर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर जो जो एक्टिविटीज आपको हैंडबुक में दिया गया है अकॉर्डिंगली वो सारे एक्टिविटीज आप एज पार्ट ऑफ इंटर्नशिप आप
वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे एंड एट द एंड ऑफ इट आप एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाएंगे एंड दैट हमें लगता है कनेक्शन लूज हो गया सर। I think some network Hello. issue is there. Is it okay now? Okay, ma'am. Now you are audible. Okay, ma'am. Some network issue was there. Yeah, yeah, Okay, yeah. ma'am. Please continue, ma'am. Okay. Okay, fine. So as I was saying, in the internship case, the internship report is to be submitted at the regional center, not at the study center. Uh, so internship handbook, you need to go to the internship handbook, and in that internship handbook, criteria regarding the organization to be selected, the supervisor in that particular organization, and the details of these things are given. Accordingly, you have to choose the organization. तो यहाँ पे समटाइम्स ये भी बात आती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम दो ऑर्गेनाइजेशन में या तीन ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप एक्टिविटीज कर सकते हैं क्या? नो, आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करना है. सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन इन द हैंडबुक, आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है एंड आपके जो सुपरवाइजर होंगे उसी ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए. And throughout the internship duration, आप अपने एजेंसी सुपरवाइजर के कांटेक्ट में रहेंगे, वहां पे एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे, प्लस आपके स्टडी सेंटर में जो एकेडमिक काउंसलर है उनके कांटेक्ट में भी आप रहेंगे. तो इट इज अ कोऑर्डिनेशन, लाइक इट इज एन इंटरेक्शन विद बोथ दिस एक्सपर्ट्स एट द स्टडी सेंटर एकेडमिक काउंसलर एंड एट द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सुपरवाइजर होंगे. इन दोनों के और इंटरेक्शन में आप पूरा जो आपका इंटर्नशिप वो कैरी आउट करेंगे. नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि सेकेंड ईयर में है वो प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट है एक रिसर्च स्टडी है. इसमें आपको एक गाइड लेना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड गाइड के इंटरेक्शन में आप गाइड के साथ डिस्कशन के थ्रू आप एक सिनॉप्सिस फाइनलाइज करते हैं, एक टॉपिक फाइनलाइज करते हैं. तो उस टॉपिक के ऊपर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं. And then that synopsis needs to be approved by, we have a list of approved evaluators. तो वो आपका synopsis approve होता है. approve होने के बाद ही आप उसमें आप for the data collection or study project पूरा कर सकते हैं. Now please remember that without synopsis approval you are not going to start your project work. The synopsis is to be submitted to the regional center. नाउ यहाँ पे एक है कि लाइक आपके एनपीसी जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमारा एक दो कोर्सेज है, एनपीसी 5 जो रिसर्च मेथड से रिलेटेड है और एनपीसी 6 जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. नाउ प्रोजेक्ट जो सेकेंड ईयर में है, प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ये दोनों कोर्स जरूरी है. सो इसलिए दिस इज कंपल्सरी दैट यू पास, यू कंप्लीट दीज टू कोर्सेज इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज एनपीसी 5 and MPC 6 जो कि आपका रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज है, बिफोर यू सबमिट योर सिनॉप्सिस इन द सेकेंड ईयर. So these two courses it is compulsory to pass before you go for synopsis submission in the second year, because it is required for the doing the project work. Now once you submit the synopsis, वो आपका अप्रूव होता है. सपोज इन केस समटाइम्स इट इज नॉट अप्रूव, फिर आपको सजेशन दिए जाते हैं उसमें, फिर यू कैरी आउट दोस सजेशंस एंड देन यू रीसबमिट द सिनॉप्सिस. सो वंस द सिनॉप्सिस इज अप्रूव्ड, देन ओनली यू स्टार्ट द डेटा कलेक्शन एंड देन यू डू द एंटायर प्रोजेक्ट वर्क. आप डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर यू राइट द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, और वो डिसर्टेशन फिर आप सबमिट करते हो अपने रीजनल सेंटर में.
नाउ प्रोजेक्ट का भी हैंडबुक होता है, सो यू आल्सो हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोजेक्ट हैंडबुक बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट course in the second year. Before you start preparing a synopsis, you need to go through the project handbook completely. So that will give you an idea about कि guide कैसे select करना है, synopsis का format क्या है, synopsis कैसे prepare करना है, और synopsis submission date क्या है, and the entire process जो पूरा synopsis preparation से शुरू होके viva तक एंटायर प्रोसेस का टाइमलाइन क्या है, वो ये सारा डिटेल्स आपके हैंडबुक में दिया गया है. Now, so this is about your courses which are there in the first year as well as in the second year. Now, coming to the instructional system that we have, before that, what are the learning resources that you have? You have the SLM that we call your study materials. आपके पास hard copy होता है, plus it is available in soft copy also on the IGNOU website, okay, under eGyan course. Okay. And also आपको soft copy available होगा through mobile app, e-content app. Okay. So you can access the soft copy of the course materials through the mobile app also and on the IGNOU website through eGyan course also. So you will have hard copy of the study materials, you can have the soft copy of the study materials. Also, there are other learning resources like audio video programs, जो कि eGyan course में under YouTube videos ये uploaded है. So you can have access to those audio video programs also. Now, हमारा जो instructional system होता है इसमें it is through different modes ये होता है. फर्स्ट तो आपका ये कि स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट क्लासेस होते हैं. दिस इज वन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कि आपके स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट क्लासेस होते हैं वीकेंड पे, एंड जिसका शेड्यूल आपको भेजा जाता है. प्लस वी हैव ज्ञान दर्शन सेशंस जो कि टेलीविजन के ज्ञान दर्शन चैनल के थ्रू ये टेलीकास्ट होते हैं. सो कोर्सेज से रिलेटेड डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट टॉक सेशंस होते हैं जो फैकल्टी लेते हैं, आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी लेते हैं समटाइम्स. तो वो आपको थ्रू ज्ञान दर्शन आप ये देख सकते हैं. वी ऑल्सो हैव ज्ञान वाणी जो कि इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग है, FM चैनल 105.6 है. तो उसके थ्रू भी क्लासेस मतलब टॉक्स लिए जाते हैं, तो आप उसको भी सुन सकते हैं अपने. उसका भी शेड्यूल, ये सारा जो मंथली शेड्यूल अवेलेबल होता है फैसी में, तो उसके थ्रू आप ये सारे प्रोग्राम देख सकते हैं. एंड अभी कोविड के टाइम ये फेसबुक के थ्रू भी सेशंस दिए जाते हैं. सो दैट आल्सो यू कैन हैव एक्सेस टू. सो आपको कॉन्टेक्ट क्लासेस स्टडी सेंटर में थ्रू ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, एंड देन आपके फेसबुक सेशन एंड अदर ऑनलाइन सेशन, ये सारे आप अवेल कर सकते हैं. आपको स्टडी के पर्पज से आप इसको अवेल कर सकते हैं. Now, coming to the evaluation part of the MAPC program, यहाँ पे since it is a master's degree program, जो pass mark है, it is 40%. One needs to secure minimum 40% to pass the particular course here, and the overall pass percentage is also 40%. Now, evaluation जो है IGNOU में ये multi system होता है. जैसे आपके स्टडी मटेरियल में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दो दैट इज नॉट इवैल्यूएटेड बट दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन. आप खुद को इवैल्यूएट करते हो. स्टडी मटेरियल आप देखेंगे तो उसमें बीच बीच में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड देन आप खुद को असेस कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्टडी में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर 2 फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, दैट इज असाइनमेंट जो कि इवैल्यूएट होता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं. दैट इज कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है थ्रू असाइनमेंट्स. एंड यहाँ पे MAPC प्रोग्राम में हर कोर्स का एक असाइनमेंट है. जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 6 थ्योरी कोर्स है, तो आपके 6 असाइनमेंट होंगे, 1 असाइनमेंट पर कोर्स. प्रैक्टिकल में असाइनमेंट नहीं होता है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में भी असाइनमेंट नहीं है. सो ईच थ्योरी कोर्स में एक असाइनमेंट होता है. तो असाइनमेंट आपके वेबसाइट में अपलोडेड होते हैं, उसके गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, उसके सबमिशन डेट्स भी दिया गए हैं. अकॉर्डिंगली आपको वो असाइनमेंट करके आपको स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा करना
एंड सेकंड थिंग इज आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन है. सो उसमें थ्योरी एग्जाम्स जो होते हैं MAPC में 2 घंटे का थ्योरी एग्जामिनेशन होता है. बट आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इंटर्नशिप का और प्रोजेक्ट का जो एग्जाम है, ये तीनों कंपोनेंट के एग्जाम आपके थ्योरी एग्जाम के बाद होता है. एंड उसका एक डेट रेंज होता है, तो आपके जो रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, दे इन्फॉर्म यू अबाउट द पर्टिकुलर डेट ऑन विच दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड. सो प्रैक्टिकल में जो एग्जाम है, आपको एक प्रैक्टिकल वहाँ पे स्टडी सेंटर, आपका एग्जाम सेंटर होता है प्रैक्टिकल के लिए. उसके लिए आप वहाँ पे एक प्रैक्टिकल कंडक्ट करना होता है आपको. एंड देन बेस्ड ऑन दैट कंडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए होंगे, दे टेक द वाइवा. So for the practical, you need to conduct a particular test during the examination, and you will have to give viva based on that practical test. Regarding internship and project, इसका जो viva होता है आपका regional center में होता है. So based on your internship report, whatever you have done as part of your internship, the viva is taken. And इंटर्नशिप में जो वाइवा होते हैं, इसका मार्क्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है. प्रैक्टिकल में जो आपका इवैल्यूएशन होता है, दिस इज इंटरनल 50 मार्क्स होता है, एक्सटर्नल 50 होता है. इंटरनल आपका एकेडमिक काउंसलर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट देते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आते हैं बेस्ड ऑन द वाइवा एंड बेस्ड ऑन द कंडक्शन ऑफ द टेस्ट दैट यू डिड ड्यूरिंग द एग्जाम, वो देते हैं. इंटर्नशिप में जो मार्क्स है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप करेंगे. यहाँ पे इंटरनल 60 मार्क्स होता है, एक्सटर्नल 40 होता है. इंटरनल जो 60 मार्क्स है, वहाँ पे आपको एजेंसी सुपरवाइजर, दे गिव यू मार्क्स आउट ऑफ 30, एंड एकेडमिक काउंसलर, वो भी आपको आउट ऑफ 30 बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, वो देते हैं. सो दैट इज वाई ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको आपके एकेडमिक काउंसलर के साथ इंटरेक्शन में रहना है, प्लस आपके एजेंसी सुपरवाइजर के इंटरेक्शन में रहना है. एंड देन वाइवा वर्सी जो है आपका इंटर्नशिप में 40 से होता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द वाइवा दैट इज गिवन बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो आपका वाइवा लेते हैं. नाउ प्रोजेक्ट में दिस इज, इसमें इंटरनल मार्क्स कुछ नहीं होता है, ये दिस इज ओनली एक्सटर्नल. बट इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज आपने जो डिसर्टेशन बनाया होगा इसमें, दैट इज आउट ऑफ 70, एंड जो वाइवा होता है दैट इज आउट ऑफ 30. सो द एक्सटर्नल एग्जामिनर हु कम्स for this, they evaluate the dissertation and they take the viva versi. So it is all external in case of project. So these are the different components in MAPC. If I talk about, you have these are the different courses. First year and second year, you have to do the assignment. You have to prepare for you have to give the theory exam, and then after theory exam, you have to give practical exam and internship and project in the second year. That is there. And overall, your pass mark is 40%. So, and as I have said in the beginning, that you have to go through the program guide first and go through the handbooks. Practical का handbook है, internship का handbook है, and project का handbook है. And हम लोगों ने very comprehensively ये सारे handbook में सारा information in detail दिया है. It is advised that all of you should go through these handbooks before you start these courses. Now, I think now I can. So this is about your MAPC program. Any queries and all this we can take up. I think later on. I think I can go for the PGDMS and then we can take the queries combinedly, I suppose. Exactly. Okay, fine. So regarding this PG Diploma in Mental Health program. This was started in July 2017 actually. Whereas our MAPC program, it has started in July 2010. So it's a long time. But PGDMH program, we started in 2017. And right now it is activated in 8 centers only. And Varanasi, because of, I must thank the regional director, Dr. Tripathi, and other staff there, because of taking active initiative and actively involved in starting this program, activating this program there, because there is a need for this program, and we
As a program coordinator, I get emails from different parts of the country for this program to activate in their regions. So we are taking steps to activate gradually in different parts of India. And so regarding this PGDMH program, it is a PG diploma program and it has 32 credits. And the minimum duration of this program is 1 year and maximum duration is 3 years. So ये आपको minimum 1 year duration में complete करना होता है. And if it is required, then you have the time till 3 years to complete it. And as you know, again, this also the medium of instruction is English at present. And the eligibility of this program, as you know, it is open to master's degree holders in psychology or social work or nursing and all the medical graduates. So this is the eligibility of this program. And for this program, we have 5 courses, 4 theory courses and 1 practical course. Now, this 4 theory courses, these are relates to different aspects of mental health. Like we have fundamentals of mental health, 1 course. We have mental disorders, another course. Mental health issues in special populations and specific issues. So there are different courses covering important aspects of this particular field. And the 5th paper is your practical. यहाँ पे practical में also we have handbook. So you need to go through the practical handbook in detail. Everything is given there in detail. The objective of this practical course is that you get hands-on experience, first-hand experience in a hospital setting. और इसका जो practical होता है, this will be carried out in a hospital setting in the psychiatry department, जहाँ पर आपके clinical psychologists होते हैं, psychiatrists होते हैं. So under their supervision, you will be carrying out different activities, जो कि आपके practical handbook में दिया गया है कि क्या-क्या activities आपको करने होते हैं. For example, आपको MSc लेना होता है, case history लेना होता है, case vignettes होता है. So details are given in the handbook. So those activities are carried out at the hospital setup. Now, usually we have just a hospital associated with the regional center. So the students will be going to those hospitals to carry out these activities there. And like MAPC में हमने जैसे बात की थी कि आपको एक supervisor लेना होता है. So here also in PGDMS you need to take a supervisor in that psychiatry department जहाँ पर आप ये practical करेंगे. वहाँ पे you need to take a supervisor from there who will guide you, who will supervise you throughout this practical activities. Okay. Now, one thing here is that like actually ये जो in MAPC I talked about internship. So PGDMS का आपका जो ये practical course है, it is like internship only. So इसलिए recently अभी हमने इसका nomenclature change करवाया है through taking approval of authorities. So maybe in the coming these things, this particular course will be called as internship actually. Okay. So, but as of now, it is going by the name practical. But इसमें ये होता है कि आपको hospital setup में जाके वहाँ पे supervisor के guidance में, supervision में, you need to carry out different activities there. And based on those activities, you need to prepare a report. Here, you don't have to be in contact with academic counselor. Here, you have to be in contact with the supervisor in the hospital setting. And उनके supervision में आप ये सारी activities करते हैं and then you prepare a report. और ये जो practical report होता है, this is to be submitted to your regional center only. And उसके base पर आपका examination होता है. So here also, if I come straight, जो आपके learning resources होते हैं और जो आप मैंने बताया MAPC के लिए जो बताया कि आपके hard copy जो print materials होते हैं, study courses, study materials होते हैं, उसके hard copy आपको available होते हैं, plus उसके soft copy आप e-ज्ञान course में और mobile e-content के through आपको मिल सकता है. And then we have audio video programs also. If you go to the e-ज्ञान course, there if you go to the PGDMH program, you will find the study materials also, and also you will find the audio video programs uploaded there for different courses, so that you can go through.
एंड इसका भी जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, आपके स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट क्लासेस होते हैं, एंड देन ज्ञान दर्शन के थ्रू, ज्ञानवाणी के थ्रू आप सेशंस देख सकते हैं, फेसबुक के थ्रू. एंड रिसेंटली वी हैव वन वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट व्यास प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं, जो कि इग्नू के वेबसाइट में है. So I am trying to integrate this PGDMS program in the VAS portal also. Okay, so abhi activate nahi hua hai, but in the recent coming future it will be activated. So that also will provide you support with regard to different classes and online resources. For the evaluation of this program, as I have said, in the study materials you will see there are self-assessment questions available. And then we have assignments and domain examination. Assignment यहाँ पे भी आपके हर theory courses के लिए एक assignment है. So you have 4 theory courses, the 4 assignments. Practical के लिए there is no assignment. Practical में आपको report बनाना होता है. Now the term and examination for the theory courses, here we will have 3 hours examination for each theory course. And यहाँ पे भी आपका जो पास मार्क है, it will be 40%. You have to secure minimum 40% to complete this, complete a particular course. Regarding practical, आपका जो evaluation system है, it is internal आपका 60 है और external 40 marks है. Internal जो 60 है आपका, it is given by the supervisor based on the activities that you have carried out there. And the external marks is, that is 40, that is given based on the report and based on the viva voce that will be taken by an external examiner. Now, one more important thing here is that इसमें ये आपका जो internal component है और external है, इसमें आपको each में separately pass करना जरूरी है. So you have to pass in internal also, and you have to pass in external also, and the pass percentage, as I said, it is 40%. So I think this is in brief about the PGDMS program. Like you have this course structure, 4 theory courses and 1 practical, and then this is the evaluation system. And practical आपको अपने जो study center से जो attached hospital है वहाँ पे आपको करना होता है. So I think Dr. Tripathi, this is this. हाँ मैम, thanks a lot for your presentation, ma'am. Actually, it not always happen that in induction meeting students get an opportunity to listen from a professor who has developed this program. उनके सीधे मुंह से बहुत कम ऐसा मौका होता है, तो थैंक्स कि आपने हमारे रिक्वेस्ट स्वीकार की, हमारे बच्चों को बताया कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और इन सब चीज़ों पर. आई बिलीव कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर एंड बच्चों के पास, और वो यूजुअल क्वेश्चंस होंगे. तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो स्टडी सेंटर जो हमारा जहाँ सबसे बड़ा स्टडी सेंटर है साइकोलॉजी का, प्रोफेसर संदीप कुमार वो जुड़े हुए हैं हमसे, और वो साइकोलॉजी के हैं. ही इज ए एक्सपर्ट इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ही इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. और तो वो अगर एड्रेस कर दे, बिकॉज ही इज ऑल्सो एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ टर्म एंड एग्जाम, तो आई थिंक ही इज बिजी और ही हैज लेफ्ट द मीटिंग. डॉक्टर संदीप कुमार, प्रोफेसर संदीप कुमार, इफ ही इज लिसनिंग तो वो भी कुछ कह ले. हेलो. और okay, I think he is busy in exam. तो I would request students if actually अभी हम आपको एक 5 minutes 10 minutes का presentation बाद में देंगे. अगर आपको internship project इन सब चीजों से कुछ पूछना हो, कोई डाउट अभी भी रह गया हो, तो आप मैम से पूछ सकते हैं. स्टडी मटेरियल, हाउ टू सबमिट द असाइनमेंट, बाकी जो चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे. अगर आपको कोर्स स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ पूछना हो तो आप, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट करके मैम से कुछ पूछ सकता है. और बाकी आपको असाइनमेंट कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो एक आध सवाल कोई पूछ ले. ओके, तो लेट मी बिगिन माय प्रेजेंटेशन. मैं 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन दे दूंगा मैम बच्चों को. दस में आई विल नेविगेट द साइट फ्रॉम वेयर दे कैन डाउनलोड द असाइनमेंट, question papers, from where they can see the program guide,
और वो जो आपने सारी चीजें बताई हैं, बस वो वहां तक पहुंचे कैसे, बस वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा मैं। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, और क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। डॉक्टर पांडे प्लीज प्लीज कंफर्म। Okay. This is IGNOU website, ignou.ac.in, एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट है IGNOU का। आप गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स आर देयर हियर, 2 लिंक्स, रजिस्टर ऑनलाइन एंड स्टूडेंट सपोर्ट। रजिस्टर ऑनलाइन आपने फ्रेश एडमिशन के थ्रू रजिस्टर किया होगा। MAPC के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये लिंक यूज करना है, री रजिस्ट्रेशन। IGNOU में आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन कराना होता है, जो कि आपका सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू हो जाएगा। तो आप उससे पहले अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन जरूर करा लें। इन दैट वे यू कैन कंप्लीट योर प्रोग्राम विद इन मिनिमम 2 years ऑफ टाइम। और तो आपको यहाँ से टर्म एंड एग्जाम, आपको यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा तो टर्म एंड एग्जाम का ये लिंक है, आप यहाँ से एग्जाम फॉर्म भरेंगे। ये स्टूडेंट सपोर्ट का लिंक है, ये स्टूडेंट जोन है। स्टूडेंट जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को अगर एडमिशन हो गया है तो दे वुड हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम IGNOU कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और आपको एक एनरोलमेंट नंबर भी प्राप्त हुआ होगा। दैट एनरोलमेंट नंबर इज फॉर योर होल प्रोग्राम, वो बदलता नहीं है। वो एनरोलमेंट नंबर आप संभाल के रखें। अगर आपने आई कार्ड डाउनलोड कर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आप आई कार्ड अपने IGNOU की फ्रेश एडमिशन का जो लिंक जिससे लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपने फ्रेश एडमिशन लिया था, उसी के थ्रू आप दोबारा से उस लिंक पे लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके आप अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट टू अस rcvaranasi@ignou.ac.in। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा ईमेल आईडी जरूर लिख दें चैट बॉक्स में। अगर आपको आई कार्ड डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें लिख दें, हम आपका आई कार्ड आपको हेल्प करेंगे आपका आई कार्ड डाउनलोड करने में। फ्रॉम हेयर यू कैन चेक योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस कि आपका एडमिशन प्रॉपर है। ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिंक है, ये एडमिशन लिंक है। आइदर ऑफ दीज लिंक यू कैन यूज, और इसमें से किसी भी लिंक को आप यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। MAPC का प्रोग्राम 2 ईयर का है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ इज 1 ईयर प्रोग्राम, जैसा मैम ने बताया। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के बच्चों को कोई सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो हुआ है उनका वही 1 ईयर प्रोग्राम है, तो सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेना है। MAPC के प्रोग्राम के बच्चों को सेकंड ईयर में एडमिशन जरूर लेना है। और आई विल टेक एन एनरोलमेंट नंबर और आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। दिस इज MAPC program 7809। This is check image, change image। ये देखिए किसी एक स्टूडेंट का ये है। These are the programs। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि आपको IGNOU की वेबसाइट पर MAPC प्रोग्राम अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप गूगल सर्च में MAPC अगर टाइप करते हैं आप IGNOU की साइट में तो आपको MA साइकोलॉजी प्रोग्राम खुलता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम ओवरव्यू कोर्सेज, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक ये प्रोग्राम गाइड यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड योर प्रोग्राम गाइड। अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके प्रोग्राम गाइड, जो मैम एम्फसाइज कर रही थी कि यू नीड टू रीड इट प्रॉपरली, आप जरूर इसको पढ़िएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर। आपको प्रोजेक्ट हैंडबुक मिलती है, उसके थ्रू भी आप प्रोजेक्ट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में जान सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के कोर्सेज है जो मैम बता रही थी, जैसे MPC 5, 6, ये दोनों कोर्सेज आपको कंप्लीट करने जरूरी हैं आपको सेकेंड ईयर में सिनॉप्सिस जमा करने से पहले। और ये सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं, इसमें से ऑप्शनल कोर्सेज हैं जैसे प्रैक्टिकम इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इन दिस वे सिमिलरली यू कैन सी द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑल्सो। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए देखिए 5 कोर्सेज है, 1 इज प्रैक्टिकल, 4 इज थ्योरी। यहाँ भी प्रोग्राम गाइड अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे IGNOU की वेबसाइट पर सिंपली यू टाइप PGDMH और whatever you type MAPC, ये देखिए पहला ही ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो लिंक विल ओपन हियर। और ये आपका, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन स्टेटस बताया, तो आपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर लिया। फ्रॉम हियर ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल। ये देखिए टर्म एंड असाइनमेंट पेपर,
यहाँ से आपको असाइनमेंट पेपर अपना डाउनलोड करना है, जो बार बार मैम कह रही थी कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऊपर ही है। ये एमए साइकोलॉजी, ये देखिए एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट पेपर्स, यहाँ पर आप इजीली जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वही आपके लिए एप्लीकेबल है। और ये देखिए फर्स्ट ईयर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स आपको अपने सादे कागज पे A4 साइज पेपर पे आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट, नो टाइप्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट आपको ये कुछ गाइडलाइंस पहले दी हुई हैं कि हाउ टू सबमिट। ये देखिए आपको कुछ डिटेल्स लिखने हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें डिटेल आपको फ्रंट पेज पर आपको लगानी है। उसके बाद अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करेंगे, दीज आर इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स। ये देखिए आपको कैसे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी बुक से, किताब से पढ़ करके अपने लैंग्वेज में आपको जमा करना है स्टडी सेंटर पे। ये कंपलसरी कंपोनेंट है। 30% असाइनमेंट का वेटेज होता है। जितना भी आप स्कोर करेंगे असाइनमेंट में, आप अपने घर बैठ करके इत्मीनान से लिख करके, उसका 30% आपको फाइनल मार्कशीट में आपके जुड़ता है। कंपलसरी है, बिना असाइनमेंट जमा किए आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है ऑनलाइन जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं कि यस आई हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। तो आप असाइनमेंट 1 टाइम जमा होता है। अगर आप पास हो गए हैं आप, तो असाइनमेंट आप दोबारा नहीं भरेंगे। एग्जाम फॉर्म जब तक आप पास नहीं होते आप एग्जाम अप्लाई की दोबारा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जून के लिए, इस बार जून के लिए असाइनमेंट जमा किया और पास हो गए, तो आपको दिसंबर में, भले आप थ्योरी पेपर आप दिसंबर में दें, असाइनमेंट आपको दोबारा नहीं जमा करना है। असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है, बाय हैंड जमा कीजिएगा, बेहतर है। अगर आप दूर रहते हैं तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। ये सारे कोर्सेज के असाइनमेंट 1 by 1 यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको इसके आंसर्स किताबों से दे करके अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है, एक सादे कागज पे लिख करके। प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल इन दिस लिंक। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर टर्म, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, किस तरीके से फ्रेमिंग होती है। तो आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक है 2008 टू जून 2020, सारे क्वेश्चन पेपर हर प्रोग्राम के अवेलेबल हैं। और एक इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको बता दूं, जो मैम ने बताया आपको कि इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश, जो स्टडी मटेरियल हमारा जो अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी, दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल, वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑप्ट किया वो भी यहाँ से ई ज्ञान कोश लिंक से, आप ये ई ज्ञान कोश लिंक है, देखिए यहाँ पर हमारा ई ज्ञान कोश लिंक है इग्नू का। यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके, जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली है तब तक आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, आई शुड टेल यू कि अभी हमने स्टडी मटेरियल रिसेंटली रिसीव करना शुरू किया। विद इन 1 वीक हम आपको SMS भेज करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको किस दिन आकर के स्टडी मटेरियल यहाँ से कलेक्ट करना है। तो यू विल कम टू रीजनल सेंटर और यू कैन कलेक्ट रीजनल सेंटर से आप अपना स्टडी मटेरियल। ये फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द मोस्ट सिंपल थिंग इज, आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके, जैसे MAPC करना है आपको, तो MAPC आप टाइप करके आप अपना स्टडी मटेरियल सर्च यहाँ से इजीली कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द अनदर ऐप विच मैम वाज टेलिंग यू कि आप, मोबाइल ऐप भी है हमारा इग्नू ई कंटेंट, वो चैट बॉक्स में लिखा भी है हमने। इग्नू ई कंटेंट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां भी आप स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अपना पढ़ सकते हैं। द डिफरेंस इज दैट जो मोबाइल ऐप है उसमें आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं कर सकते। हियर यू कैन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल एंड सेव इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, और बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल में आप रास्ते में हैं, सफर में हैं, तो आप वैसे आप वहां पे ओपन करके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, ये देखिए MS साइकोलॉजी का यहाँ पे, इस लिंक को आप यूज करके स्टडी मटेरियल आप। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और लिंक मैं आपको दिखाऊं, RC वाराणसी का हमारा रीजनल सेंटर वेबसाइट है। हियर वी अपलोड द काउंसलिंग शेड्यूल। हम सारी काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल है। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है, हमारा फेसबुक पेज है, facebook.com/ignuvns। आप इसके थ्रू जो हमारे स्कूल प्रोफेसर स्वाति पात्रा और इनकी टीम जो भी लाइव सेशंस लेते हैं, हम यहाँ पर शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये इंडक्शन मीटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो हम यहाँ पर शेयर जरूर करेंगे, जैसे पिछले रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे शेयर्ड हैं, और सारी इंफॉर्मेशन। तो आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू लाइक एंड फॉलो दिस पेज। और बाकी जो साइट्स हैं, जैसे eGyan Coach and other sites are also available on our regional center website also.
ये देखिए ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ई ज्ञान कोश, ये सारी लिंक्स यहाँ भी अवेलेबल हैं। तो ये था छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन। आपको इसके बाद अगर कोई सवाल पूछना हो तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट लिंक और मैं आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि स्टडी मटेरियल हमें मिला नहीं। तो स्टडी मटेरियल स्टेटस आप यहाँ से गूगल सर्च ऑप्शन में स्टडी मटेरियल स्टेटस आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आता है ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करके जब भी आपका स्टडी मटेरियल, ये देखिए जुलाई 2020 के आप स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से आप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं इनरोलमेंट नंबर। इफ इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग तो इसका मतलब कि अभी आपका स्टडी मटेरियल वहां से डिस्पैच नहीं हुआ है, प्लीज वेट, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को हम रीजनल सेंटर से प्रोवाइड करेंगे। आउट ऑफ द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उनको बाई पोस्ट उनके घर पर स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। ये कुछ सवाल थे और जो जिनके मैं जवाब देना चाह रहा था, बच्चे पूछ भी रहे थे। और अब मेरे ख्याल में प्रोफेसर संदीप कुमार हैज जॉइंड द मीटिंग और इनफैक्ट वो शायद एग्जाम में व्यस्त हैं। तो इफ एनी स्टूडेंट, हेलो सर, जी हाँ पूछिए। मैं आप क्या हाँ प्रोफेसर संदीप कुमार जी प्लीज आप आइए, जरा बच्चों को कुछ एड्रेस कर दीजिए। आप अपने स्टडी सेंटर के बारे में बताइए कि हाउ यू आर एक्सेसिबल और आप लोग कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम योर स्टडी सेंटर ओनली। पीजीडीएमएच आप ही के यहाँ एक्टिवेटेड है और एमएपीसी का मेजर पोर्शन आपके यहाँ है, तो प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस इंडक्शन मीटिंग एंड I welcome Swati Patra madam on my study center's behalf and on behalf of the regional center also, because I'm closely associated with the regional center as well. So पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत पहले हेसिटेंट थे कि कैसे हम लोग इग्नू की अपने काम के साथ साथ इग्नू को कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो अराउंड 2018 में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं कि हम इग्नू का जो सेंटर है अपने फैकल्टी में लें, और हम लोगों ने शुरू किया वहीं से 5 कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए। एमएपीसी शुरू किया, फिर सोशियोलॉजी था, हिंदी था, कॉमर्स था, इस तरीके से 5 कोर्सेज हम लोगों ने, हिस्ट्री था, शुरू किया। और इनिशियली हम लोग बहुत अवेयर नहीं थे, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि हम लोग इग्नू से जुड़े। लेकिन जुड़ने के बाद लगा कि नहीं, कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग आवर ड्यूटीज इन आवर डिपार्टमेंट, जो हमारे टीचिंग है, जो रिसर्च है, हम और भी जो हमारे स्टूडेंट्स जो किसी वजह से बीएचयू में नहीं पढ़ पाते हैं और चाहते हैं बीएचयू में पढ़ना, इग्नू एक ऐसा माध्यम है कि हम वो इनपुट जो है दे सकते हैं। अपना इनपुट हम जो बच्चे किसी वजह से हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग उसके साथ जुड़ते गए। हमारे डिपार्टमेंट के अभी मैडम उर्मिला रानी श्रीवास्तव मैडम जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर उर्मिला रानी श्रीवास्तव जी हैं जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर योगेश कुमार आर्या जी जुड़े हुए हैं। अभी हमारी यंग कलीग आई हैं डॉक्टर चली काव्या हैं, वो हेल्थ साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करती हैं, और जो मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम है उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगी। डॉक्टर जय कुमार रंजन है, वो आरसीआई से उनका रजिस्ट्रेशन है, वो रांची से उन लोगों ने पास किया है। एक हमारे फ्रेंड हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, देवा सेंटर है यहाँ पे मेंटल हेल्थ का, वहाँ पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो निभान से पास आउट हैं। तो ये हमारे पास एक टीम है जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज कर रहे हों, चाहे वो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में स्पेशलाइज कर रहे हों, ये तो हमारी कोर टीम है जो काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, लखनऊ के जीएमयू में हैं, भोपाल का जो सेंटर है वहां पे हैं, या दूसरे भी सेंटर्स में है, यदि बच्चों की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां से भी बच्चों को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करा पाएंगे। एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि हम करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं। तो वो लोग जहां भी बच्चे हमारे जाके करना चाहेंगे उनको वो ट्रेनिंग, मैक्सिमम जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है, मेंटल हेल्थ की जो ट्रेनिंग है, साइकोथेरेपी की जो ट्रेनिंग है, वो उनको मिल पाएगी। तो एक हमारे जो नेटवर्क है वो, उसका फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा। दैट आई कैन अश्योर ऑन माय पर्सनल बिहाफ एंड ऑन माय बिहाफ ऑफ माय डिपार्टमेंट, वो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि विल गेट बेस्ट आउट ऑफ आवर डिपार्टमेंट।
तो चलिए फिर शुरू करेंगे एंड शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंसलिंग सेशंस जो कि हम लोग गूगल मीट पे ही करेंगे और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं बच्चों जो भी लर्नर्स हैं बच्चों तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत से हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जो हमसे भी बड़े होते हैं कई बार ऐसे अभी यहाँ पे एनसीसी में थे कैप्टन शर्मा थे उन्होंने हमारे साथ इंटर्नशिप की चूंकि इंडस्ट्रियल चूंकि उस सेटअप में थे तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उन्होंने किया तो लर्नर्स ही कहेंगे और जो हमारा सेंटर है पहले स्टडी सेंटर हुआ करता था नाउ इट इज उसको ध्यान में रखते हुए दैट इज नाउ लर्नर सपोर्ट सेंटर तो जो भी लर्नर्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं फैसिलिटेट करते हैं तो आई वेलकम ऑल द न्यू लर्नर्स टू द सेंटर एंड आई होप कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम the materials for the IGNOU and जो हमारे faculty members हैं वो भी आपको help करेंगे सीखने के लिए. So with these few words, thank you very much and welcome you all to this session. Thank you Professor Sandeep sir. और अभी बच्चों ने पूछा कि काउंसलिंग शेड्यूल कब होगा तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नेक्स्ट वीक के बाद 2 दिन पहले ही हम बैठे हुए थे कि हम लोग को शुरू करना है. अच्छा तो जैसा मैंने आपको बताया कि आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल लिंक में आप चेक कीजिएगा और वी विल इन्फॉर्म थ्रू मैसेजेस आल्सो जब भी काउंसलिंग शेड्यूल जैसे पिछली बार भी हमने लॉकडाउन में हमारी टीम ये बीएचयू के ही डॉक्टर कविता पांडे ने भी ज्वाइन किया है वो भी बीएचयू से एसोसिएट है असिस्टेंट प्रोफेसर है वो काउंसलिंग ली थी ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने बाकी लोग तो हम आप नेक्स्ट वीक से करेंगे और आप आरसी वाराणसी की वेबसाइट से काउंसलिंग शेड्यूल लिंक में वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वी विल सेंड द लिंक थ्रू एसएमएस आल्सो. तो डोंट वरी अबाउट इसके अलावा हमारे पास जो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है हर क्लास के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो दैट लिंक विल गो टू व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो तो वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है सभी को लिंक ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा आपके मेल पे जाता है आपके व्हाट्सएप पे जाता है और आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे रहता है आपको एसएमएस भी भेजा जाता है तो मल्टी चैनल है आपको इन्फॉर्म करने के लिए हमारे पास तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो रिक्वेस्ट करें और जल्दी उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा और बाकी मैं डॉक्टर संदीप सर से कहूंगा कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसमें जोड़े और आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की प्रोफेसर स्वाति पात्रा मैम हैं प्रोफेसर संदीप कुमार है हमारे साथ कोई भी एक आध कोई बढ़िया सवाल पूछिए जिससे आपको जवाब मिले ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट डायरेक्टली एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द प्रोफेसर टीम एट हेडक्वार्टर्स तो आप कोई सवाल पूछना चाहें. हेलो सर. जी हाँ माइसेल्फ सर डॉक्टर तरुण पटेल. हाँ हेलो. जी हाँ पूछें. हाँ सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ फ्रॉम वाराणसी रीजनल सेंटर. माय क्वेश्चन इज दैट what will be the procedure of the practical course to be done during this COVID period, in current scenario? Ma'am, please. See, practical जैसे कि मैंने अभी I have informed that practical is to be done at the hospital setting in the department of psychiatry because it is it has to give you first-hand exposure. First-hand experience about how the different activities like taking case history or conducting MSc or observing cases. Usually, many times they in the hospital setup because you all will be trainees, so they may not allow you to directly involve in the intervention process or this thing. But yes, observation can be there and discussion with the supervisor can be there. So regarding different activities, it is mentioned. Now, because of COVID, when you are saying now this is your admission July this thing, so gradually things are opening up now. So for this particular practically it has to be in the hospital setup because other than that, otherwise it will not be possible to get that kind of experience when you are doing this type of program. So maybe one can and of course I think the study centers are there, the hospitals are attached with the center, so you can take this facility and वहाँ पे आपको visit करके जाके वहाँ पे जो whosoever will be the supervisor for you there,
you have to discuss with the supervisor and then carry out the activities there in the hospital setup. Okay. So, Okay, ma'am. Because, ma'am, in the COVID period last year, the schedule was different. We were doing right. senior batches. We are doing from the home on the website only See, some activities. yeah, I'll tell you because last time it was the peak COVID time was going Yes. on, and the university took a decision, and Yes, also ma'am. from the UGC also that direction had come to make it online wherever we have internship courses or practical courses. Okay, Yes. so across the different programs we had made it online for that particular time. Okay, Okay, ma'am. but right now it will be at the hospital setup. Okay, ma'am. In the Varanasi BHU, my center is there in the social science faculty of social science. So where will be I have to go for the practical there in BHU? And Varanasi Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. The study center is in Department of Psychology itself. तो आपके लिए मतलब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो हमारा स्टडी सेंटर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है. प्रोफेसर संदीप कुमार इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ओनली. तो आप उनसे जाके जो आप मिल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में. डॉक्टर त्रिपाठी, आई थिंक स्टडी सेंटर से हॉस्पिटल भी वो हाँ पास में ही है. पास में ही. आप हाँ प्रैक्टिकल और जैसे इंटर्नशिप के लिए पीजीडीएमएच, हाँ ये देवा इंस्टीट्यूट यहीं बगल में ही है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं. So there are approved centers जो कि आरसी से ही मतलब टाई अप है. So you can contact your study center and then the guidance. वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे आपको. ठीक है ना? Okay. Sir, how can I be included in the WhatsApp group because we will send you the link. We will send you the link. Okay. On through SMS. Okay. Basically, sir, I am an eye surgeon and interested in doing the psychology from the PGI Lucknow, I think, huh? No, sir. My wife is a PGI Lucknow. I am here in Varanasi only. Okay, that's good. Near Apex Hospital, DLW, sir, you will be knowing because being in the Varanasi. Must be knowing a lot. देवा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वहीं पे है आपका प्रैक्टिकल. Yes. आपको वाराणसी का पता ही होगा फिर, तब तो ठीक है. Yes. One student is also want to ask. Thank you, ma'am. Thank you. Vivek Maurya, you may ask your question. Ujjwal Pratap Singh. Yes, sir. Hello, sir. Hello. Yes, sir. I'm Ujjwal. अपना प्रश्न पूछिए. Yes, sir. I want to ask ma'am, as ma'am told, in second year we will have counseling, psychology, industrial, and clinical one. So, ma'am, I want to know how we will differ this from this. How we will know that which one is more important and through which we should go. See, second year you have 3 specializations and you have to opt for one. Okay. Yeah. So now sometimes, as I said, students will have difficulty in choosing one, like which one I want to go for. That will depend on your interest area. Okay. Yes, ma'am. Suppose you have taken admission in MAPC and suppose you are working now in some organization setup, company. So definitely your interest will be more into the OB area, or HR area, because there if you take clinical psychology as a specialization, that may not be relevant for you. Okay. Keeping in mind your current work area. Okay. But yes, if you have interest in that area to go explore that area, then definitely. So it will ultimately depend on your own interest area and sometimes keeping in mind the context in which you want to work further or currently working. Okay. So all these are there. Okay, thank you, ma'am. Anyone else who want to ask? और जैसे मैम ने बताया ना कि इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, आप अगर इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं, एचआर में या किसी में, तो वो आपके लिए बेहतर होगा. क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे दैट इज अबाउट डायग्नोसिस, और वो और काउंसलिंग साइकोलॉजी है, तो उस हिसाब से आप फर्स्ट ईयर में ही अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि विच कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट एज ए स्पेशल पेपर इन सेकेंड ईयर. So I think now anyone else? अजय कांत अधिकारी जी, पूछ लीजिए.
गुड इवनिंग। पूछ लीजिए। योर वॉइस इज नॉट कमिंग अजय कांत जी। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ये आप कोई दूसरा सवाल पूछ ले, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आप कोई और पूछ लें। लाइफ विद नेचर। Good evening, sir. Myself, Ranjana Shukla. I जी। want to ask that I take admission in MAPC, and you tell me about the internship is done in the regional center. I live in Gorakhpur. Then I have to be come there for so many days, or नो it नो is done in नो one day नो only? नो नो नो, इंटर्नशिप रीजनल सेंटर पे नहीं होती। वो एजेंसी में होती है, जैसा मैम ने बताया आपको। वो किस टाइप Okay, की sorry, एजेंसी sorry. में होती है, वो लिस्ट आपको प्रोग्राम गाइड में दी हुई है। इंटर्नशिप हैंडबुक भी Okay. है, तो आप उसको देखिएगा। वो आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक Okay. एजेंसी So, सुपरवाइजर sir, होगा। sir, I am a teacher in a school. Can I do it in my school only? अब वो लिस्ट में आना चाहिए, वो वैसा स्कूल में नहीं हो पाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। that will मैम depend on कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लिए मतलब लेंगे सेकेंड ईयर। I am pursuing for counselor, ma'am. Okay, so I think most probably second year you will opt for counseling psychology. So if you are Yeah, taking ma'am. counseling psychology as a specialization in the second year, Yeah, ma'am. to see the internship handbook regarding which kind of organizations you can choose to do your internship. Okay, and Okay. mostly schools भी उसमें है, but बाकी provision भी है उसमें कि एक Okay. proper counselor वहाँ पे होने चाहिए, because supervisor also needs to be there in the school. Who can be the Okay, okay. supervisor, ये भी उसमें दिया गया है. So Okay, accordingly, okay, ma'am. And how many days I have to be do the internship, ma'am? see, internship is of 240 hours. Okay, so accordingly, Okay. Then no problem, ma'am. Anywhere I will go, no problem. yeah, जो भी Okay, activities okay. दिए हैं उसमें वो सारे activities आपको करने होते हैं. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. जी हाँ। जो आरसी में आप बात कर रहे थे, रिपोर्ट आपको आरसी में जमा करना है. Okay. So report I send in by courier only. Yeah, हाँ I think ठीक है, भेज सकते हैं। वी विल एक्सेप्ट। Okay. अगर कोई Okay. डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम आपको इन्फॉर्म भी करते हैं। इंटर्नशिप और Okay. प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन और जिसको बोल रहे हैं, और उसका one another synopsis question, sir. Ma'am, रीजनल the सेंटर पे आए। Okay, sir. Sorry to interrupt you, sir. One more question is there, ma'am. Sir, ma'am, the classes is conducted by the study center. Can they inform us regarding the classes, or we have to go and take the information from there? No, we will inform you. We will inform you. Study center will inform you about the classes. Okay. Or Thank be you, in sir. touch Thank with the regional center website rc1rc.ignou.ac.in. Actually, sir, I am not very much time for doing the internet and People all that inform you through because I SMS. have lot of work, sir. So that I am People sorry inform for you through that. SMS, ma'am. Actually, so that I just take the hard copies only because I'm not very much comfortable with the net and all that. I'm stuck with this for 9 months. I am taking online and all that. Okay. No problem. हम आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। Okay. Excuse me, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Am I audible? Hello. Please continue. Yes, sir. I am Ajay Kant. I am a student of MSc FTT. But regarding to my topic, I am not getting. Last 2 times I have joined these classes. I do not know how I'll get this all information. आप MSc CFP के स्टूडेंट हैं। ये MAPC की इंडक्शन मीटिंग चल रही है। आप अपना ईमेल आईडी हमें चैट बॉक्स में लिख दें और फोन नंबर। मैं आपको अभी फोन करवा के आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाता हूँ, ठीक है ना। आप अपना हमें चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर हमें लिख दें चैट बॉक्स में। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन टेकिंग, और इसके बाद जिसको भी कोई सवाल होगा वो RC1RC पे हमें ईमेल जरूर करे, और तो हम हाँ पूछ लीजिए मैम। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सिमरन। सर हाँ पूछिए सिमरन जी, पूछिए। सर वो जो अभी मुझे रीसेंट इंफॉर्मेशन मैंने जो देखी थी उसमें हमारे MPC जो प्रैक्टिकल्स है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि इतने प्रैक्टिकल्स हैं।
तो सर वो जो प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, किस तरीके से करने हैं? तो प्रैक्टिकल हैंडबुक होती है आपकी, आपको स्टडी मटेरियल के साथ दी जाएगी, वो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल आया ही नहीं है और ना ही डेट दिख रही है। आपको रिसेंटली हम जल्दी ही भेजेंगे आपको किताब, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, हम जल्दी भेजेंगे आपको। और जब तक नहीं आता है, आप ई ज्ञान कोश और ई कंटेंट ऐप है, उस पे आप जाकर के एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए ऐसे लाइटली कि उस पे जैसे दिख जाता है आपको, तो उस पे आपको अंदाजा लग जाएगा ई ज्ञान कोश और इग्नू ई कंटेंट ऐप पर। बट सर हेलो, तो सर जैसे कि अगर सर हार्ड कॉपी के बिना उसमें हार्ड पढ़ने में कॉपी बहुत देंगे दिक्कत हो रही मैम, है। आपको हार्ड कॉपी देंगे, वो जाएगा, बट उससे पहले जब तक वो नहीं मिल रहा है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेट तक चला है, दिसंबर तक एडमिशन चले कोविड की वजह से, उसके बाद थोड़ा डेटा फाइनलाइजेशन में टाइम लगा है, तो इस बार किताबें थोड़ी लेट हो गई हैं, तो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। असाइनमेंट का टाइम तब इंक्रीज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, असाइनमेंट का टाइम, असाइनमेंट सबमिशन का टाइम इंक्रीज जरूर होगा। वी विल टेक द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माइंड, हमारी अथॉरिटीज जरूर उस पर करेंगी। बिफोर एग्जाम फॉर्म सबमिशन आपको असाइनमेंट जमा करना है, तो एग्जाम फॉर्म सबमिशन अप टू अप्रैल तक जरूर चलते हैं, अप्रैल मई तक। तो वो आप चिंता मत कीजिए, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज स्टूडेंट के हित का ध्यान। ठीक है मैम, और थैंक यू। और जिसको भी सवाल पूछना है वो हमें बाद में मेल कर ले, इसके बाद, क्योंकि वी आर एक्सीडिंग आवर टाइम लिमिट, 1 घंटे की मीटिंग थी। और आई विल थैंक प्रोफेसर स्वाति पात्रा मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम कि आपने हमारे रिक्वेस्ट पे आप आए और हमारे स्टूडेंट के लिए इतना टाइम दिया, हमें बताया। और वी विल बी अपलोडिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन आवर फेसबुक पेज, वी विल शेयर इट विथ यू मैम ऑल्सो। तो हमारे फेसबुक पेज पे जिसको भी, जो उन्होंने लेट में ज्वाइन किया, वो इस रिकॉर्डिंग को फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। एंड यू कैन कीप इन टच विद अस थ्रू मेल rcvanarsi@ignou.ac.in। और जैसा मैम ने बताया कि आप psychology@ignou.ac.in को भी मेल कर सकते हैं, किसी अगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो पाती सॉल्व, तो वहां पे बाद में आप कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन, थैंक यू डॉक्टर पांडे विल बीइंग विद अस। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, और तो उसके बाद मैं आपको फिर से प्रोफेसर संदीप कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू ऑल। जो भी सवाल होगा आप हमें मेल जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू।